Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla, currently working as a junior resident in NHMC, Delhi. Today I'm going to talk about the drug picture and the topic is cephalinom. And I'm going to divide it in two parts. First part is all about the preparation, the presentation and especially the mark features. पर्टिकुलरली जो प्रेजेंट करेगा लाइक मार्क फीचर क्या है उसके एंड पर्टिकुलर्स हेड टू टो जो स्कीमा होगा उसमें क्या क्या सिम्टम्स है क्या क्या कंप्लेंट्स है तो हम पहले उसके बारे में जानेंगे एंड इन द पार्ट टू आई एम गोइंग टू tell you about the personality of cephalinom. So guys, without wasting time, let's go. So guys, today's topic is drug picture of cephalinom. Cephalinom के बारे में आज बात करने वाले हैं हम, ठीक है. And it's a nosode, not a very common remedy, ठीक है. Leucinum और luticum is another name of cephalinom. Common name की बात करें तो leucinum and luticum. Sometime examiner might ask you another name of cephalinom, तो keep it in mind. Leucinum और luticum भी बोलते हैं इसको. Then it's a nosode, so I have written it here. Now come to the prover. Prover is Dr. Swan, and Skinner prepared the potency for cephalinom. Okay. Now let us understand something. Part use में क्या आएगा इसमें? It is prepared from syphilis discharge. ठीक है. और हमारी बुक्स में क्या लिखा हुआ है? सिफिलिस वायरस, बट देयर इज़ एन एरर. ये वायरस से नहीं होता है, ठीक है. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टी पैलेडियम. टी इज ट्रेपिनोमा पैलेडियम. इट्स अ बैक्टीरिया एंड इट प्रोड्यूस सिफिलिस बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. नाउ सिफिलिस का अपने में ही अलग अलग प्रेजेंटेशन है, प्राइमरी, secondary and tertiary. That is a different thing. I will tell you in detail. If you want to understand about cephalinom, first you have to understand its mark feature. And when you are studying this cephalinom, drug cephalinom, then definitely कहीं ना कहीं हमारा miasm syphilis भी cover हो जाएगा. So you will have a good understanding about the miasm syphilis. Let's start with the mark features. Okay, I have skipped this one. Let's talk about this. Cured cases of secondary syphilis. This is what Dr. Clark observed, that this remedy is useful in secondary cases of syphilis, and even Dr. Kant also. It is not given in primary stage or manifestation of syphilis. See, whenever we are talking about homeopathic remedies and always totality of symptom is the only way to prescribe. सबसे important यही है, पहला प्रिस्क्रिप्शन हमारा जो होगा वो यही होगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे ही होगा, ठीक है. कभी भी आप डिजीज़ स्पेसिफिक, ड्रग स्पेसिफिक अगर आप जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. Then there is no uniqueness. Okay, there are things जहाँ पे हमें specific remedy देनी पड़ती है, but always try to go with totality of symptom. Now, it has cured cases of secondary syphilis, but not the primary syphilis. Because primary syphilis की अगर बात करें हम एलोपैथिक साइड की या फिर ओल्ड स्कूल की साइड का बात करें तो previously crude mercury was used to treat primary stage of syphilis, which is a simple प्रेजेंटेशन. क्या प्रेजेंटेशन होता है उसमें? स्मॉल अल्सर ओवर जेनाइटल एरिया विच इज़ पेनलेस. इसके लिए ओल्ड स्कूल में क्रूड मर्करी का यूज़ किया जाता था, बट इट विल लीड टू सप्रेशन एंड इट डज नॉट क्योर. देन फर्दर इट विल लैंड अप इनटू सेकेंडरी सिम्टम्स. Now for the secondary symptom you can use the cephalinom, but not for the primary one. तो precaution हमें याद रखना है कि हमें प्राइमरी में नहीं करना है इसको प्रिस्क्राइब. Now एक चीज़ दिमाग में रखना, whatever I'm going to tell you, it is also kind of explaining the miasm also. पहला जो मार्क फीचर आता है हमारे सिफिलिस का वो है नाइट एग्रेवेशन. अगर हम कंपेयर करें सोरा माइजम में सारी एग्रेवेशन कब होगी? मॉर्निंग, ठीक है. मॉर्निंग आफ्टरनून टाइम पे होता है सारा एग्रेवेशन. बट इन syphilis, it is night aggravation. Night is the frightful thing they have ever come across.
सो पेन फ्रॉम डार्कनेस टू डे लाइट, रात में पेन शुरू होता है पेशेंट को एंड इट वेंट अवे इन डे लाइट, बट दिस नाइट इज़ वेरी ड्रीडफुल। पेशेंट के लिए वो रात निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बिगिन विथ ट्वेलाइट एंड एंड विथ डे लाइट, ऑल सिम्टम्स आर एग्रेवेटेड एट नाइट। सो एक कॉमन मार्क फीचर इज एग्रेवेशन एट नाइट, राइट। नाउ नेक्स्ट, second, terrible dread of night on account of mental and physical exhaustion on awakening। ऑलरेडी बताया कि सारे कंप्लेंट्स जो हैं इसका नाइट एग्रेवेशन है। तो जैसे ही नाइट टाइम आएगा तो सिफिलिस पेशेंट का जो भी कंप्लेन है, चाहे वो जॉइंट पेन है, अस्थमा है, ठीक है, या कोई भी प्रेजेंटेशन है, वो सब के सब कहाँ पे एग्रेवेशन होगा? नाइट में। एंड इसी चीज़ का उसको इतना फियर है, बिकॉज इतना ज़्यादा एग्रेवेशन है, इतना फियर है कि वो मेंटल एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करता है एट नाइट टाइम। टेरिबल ड्रीड ऑफ नाइट, रात का उसको बहुत डर लगता है, बट जैसे ही डे लाइट आता है तो ही इज़ और शी इज़ मच बेटर। तो दे प्रिफर डे better as compared to night. Second symptom, see whatever I have given here or whatever I'm teaching you, it's already written in keynote and I have referred many book. So जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, this is wholesome, ये सारी चीज़ें आपको एलेंस के अंदर लिखी हुई है, एलेंस में है। आई हैव स्टडीड क्लार्क ऑल्सो एंड आई विल टेल यू अबाउट द मेंटल पिक्चर, तो वो मैंने फिलिप एंड बेली से करा है। लेकिन ये सारे सिम्टम जो 18 मार्क फीचर में बताने वाली हूँ, इट डिस्क्राइब द होल सिफिलिनम। अगर आपको ये याद है देन यू कैन रियली राइट वेल इन योर एग्जाम अबाउट सिफिलिनम, एंड ऑफ कोर्स इवन इन योर ओपीडीज यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर यू हैव टू गिव सिफिलिनम और नॉट। ओके, सो नाउ कम टू द थर्ड सिम्टम, दिस नाइट एग्रेवेशन। अभी सिर्फ एक ही सिम्टम पे बात कर रहे हैं हम, नाइट एग्रेवेशन, पर उसका थर्ड पॉइंट क्या है? दिस नाइट एग्रेवेशन विल बी फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द केसेस नीडिंग सिफिलिनम। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको ये नाइट एग्रेवेशन का सिम्टम मिलना चाहिए। लाइक इन केस ऑफ ऑफ्थेल्मिया, नाउ ही इज़ नॉट टेलिंग यू कि इट इज़ स्पेसिफिक टू द सम डिजीज़ कि भाई रात में उसी कंप्लेन में इसको रात को दिक्कत होती है। इट कैन बी एनी कंप्लेन बट विद नाइट एग्रेवेशन। ऑफ्थेल्मिया, पेन आर एग्रेवेटेड एट नाइट। व्हाट इज ऑफ्थेल्मिया? आई अफेक्शन, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द नाइट द लिड्स ग्रो टुगेदर। न्यूरैल्जिया एंड हेडेक। न्यूरैल्जिया मीन्स, ठीक है, नर्व इन्वॉल्वमेंट जब हो जाएगा तो नर्व पेन भी बोल सकता है। हेडेक, अस्थमा, कफ, वट एवर इट इज़, आप बीमारी का नाम कोई भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ एग्रेवेशन, एंड एग्रेवेशन एट नाइट। सो एग्रेवेशन इज फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, वेदर सिफिलिटिक और नॉट। नाउ ही इज़ टेलिंग यू इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सिफिलिटिक ही कंडीशन होना चाहिए। इट कैन बी एनी कंडीशन, एनी डिजीज, बट एग्रेवेशन इज नाइट, विल बी बेनिफिटेड बाय सिफिलिनम। सो गाइज आई थिंक इतना क्लियर है, नाइट एग्रेवेशन इज वेरी वेरी मार्क्ड इन दिस माइजम और रेमेडी। नाउ फोर्थ इज अल्सरेशन। जब हम सिफिलिस की बात करते हैं, चलो एक ब्रीफ चीज़ बताती हूँ मैं आपको, व्हाट इज सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। प्रेजेंटेशन एक हम रफ प्रेजेंटेशन अगर हम रखें, तीनों माइजम का प्रेजेंटेशन क्या होगा? सोरा इज मोस्टली डेफिशिएंसी, मतलब द पर्सन इज लैकिंग इन समथिंग। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है, तो पर्सन माइट बी एनेमिक। साइकोसिस की जब बात करते हैं, दिस माइजम इज एक्सप्रेस्ड बाय इन वन टर्म इज ओवर ग्रोथ। देयर आर सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड हो सकता है, ठीक है, वॉट हो सकता है, देन दे बिलोंग टू द साइकोसिस। नाउ कम टू द सिफिलिस। सिफिलिस इन वन वर्ड इफ आई वांट टू डिस्क्राइब इट, इट इज डिस्क्राइब्ड एज डिस्ट्रक्टिव माइजम। जब डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, मतलब अल्सर की बात करा है ना इसने, अल्सर मीन्स इन्वेड करा है स्किन को, इन्वेजन ऑफ स्किन हुआ है, देन अल्सर इज प्रोड्यूस। सो कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टूवर्ड सिफिलिटिक कंडीशन और डिस्ट्रक्शन। सो यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी वेरी क्लियरली। सो नेक्स्ट इज अल्सरेशन। अल्सरेशन may affect mouth, nose, genitals और skin and the ulcer have greyish basis। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिफिलिनम का जो अल्सर होगा उसका कैसा बेस होगा, ठीक है। In the nose, they produce the most offensive form of oozena with discharge of fetid clinkers. Offensiveness is mark. What is oozena? Okay, I will explain the meaning of oozena. It is a disease of nose in which the bony bridge and mucous membrane of nose waste away. Oozena मतलब destruction हो रहा है आपका nasal bridge का, ठीक है। वहाँ से कैसा डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है? ऑफेंसिवनेस। थर्ड स्टेज पे आता थे, अल्सर है,
इट कैन बी इन एनी पार्ट, माउथ, नोज, जेनाइटल, स्किन, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। कैसा बेस है उसका? ग्रेइश बेस है, एंड इट इज ऑफेंसिव। डिस्चार्ज ऑफ फीटेड, fitted is also offensiveness. डिस्चार्ज ऑफ फीटेड क्लिंकर, मतलब जो डिस्चार्ज आएगा सॉलिड टाइप फ्रॉम नोज, सॉलिड टाइप होगा, ठीक है, एंड इट इज फीटेड इन कैरेक्टर. सो दिस वॉज अबाउट फोर्थ पॉइंट, अल्सरेशन. कम टू नेक्स्ट, फिफ्थ. फीटेड डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर कम इन सेम कैटेगरी. अब इसने बात करी है, पहले अल्सर की बात करी है, अल्सर में नोज़ के बारे में बोला उसने, माउथ बोला उसने, जेनाइटल है, स्किन है. और इन जनरल अगर पेशेंट आ भी रहा है ना विद एनी कंप्लेंट, ऑफेंसिवनेस मार्क होगी. आपकी क्लिनिक में भी हो सकता है ऑफेंसिव, उससे आते ही पेशेंट बैठा है जैसे उसमें, ठीक है, और उसका जो अल्सर है इट माइट बी सो ऑफेंसिव दैट यू कैन नॉट बियर इट, ऐसा भी है, ठीक है. तो एक प्रेजेंटेशन क्या हुआ? ऑफेंसिवनेस. ऑफेंसिवनेस इन एनी कैटेगरी, whether it is from ear, nose or anywhere else. Next is abscess with foul secretion. Foul secretion, fetid secretion, offensiveness. Foul, fetid and offensiveness. Every meaning, every word have similar meaning somehow, but the intensity जब हम बात कर रहे हैं तो intensity थोड़ा change होता है with term. So fetid discharge, offensiveness is marked in syphilis, syphilinum. Next, succession of abscess is one of the grand keynote of this materia medica. इस रेमेडी का जो ग्रैंड कीनोट है वो है सक्सेशन ऑफ एब्सिस, मतलब एक के बाद एक एब्सिस बनता जाएगा. लाइक पहले उसको एक्सिलरी रीजन में कोई हुआ, ठीक है, अब वहाँ से ठीक हुआ तो ब्रेस्ट रीजन में पहुँच गया, ठीक है, चेस्ट में, एब्डोमेन में पहुँच सकता है. तो मतलब वन आफ्टर अनदर सक्सेशन ख़त्म नहीं होता है, मतलब पेशेंट इज सम हाउ प्रोन टू द एब्सिस. जब ऐसा है तब आप ये रेमेडी सोच सकते हो, सक्सेशन ऑफ एब्सिस. एब्सिस भी कैसे? फाउल, फीटेड, ठीक है, डिस्चार्ज ऐसा हो सकता है उसमें. नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आई सिम्टम्स. ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम. न्यूनेट्रम ऑफ्थेल्मिया क्या होता है? न्यूनाइटिस न्यूबॉर्न. So I will tell you what is ophthalmia neonatrum first. It is a type of conjunctivitis जो एनकाउंटर्ड होता है हमारे न्यूनेट्स में, एंड न्यूनेट्स आर 28 डे या 1 मंथ जो होता है हमारा 1 मंथ चाइल्ड, उसको बोलते हैं हम न्यूनेट्स, ठीक है. तो इन केस ऑफ ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम मतलब बच्चे को अगर कंजक्टिवाइटिस है, लिड्स एडहेयर ड्यूरिंग स्लीप, सोते टाइम पे उसकी आंखें जो लिड्स है वो चिपक जाता है, ठीक है. पेन इसमें एग्रेवेशन है 2 to 5 AM हो सकता है. पेशेंट आपको टाइम बताए कि बच्चा 2 से 5 के बीच में रोता है, बहुत परेशान होता है, ठीक है, तो वो एग्रेवेशन यू हैव टू डिड्यूस इट कि ये एग्रेवेशन है क्या है, ठीक है. देन देयर माइट बी पस इज प्रोफ्यूज, आंखों से पस्ट्यूलर डिस्चार्ज आया जा रहा है, ठीक है. एंड इट इज़ बेटर बाय कोल्ड बेदिंग. जब भी बच्चे को उसका आइज़ क्लीन कर रहे हैं विद कोल्ड वाटर, द चाइल्ड इज़ गेटिंग रिलीफ. वो कैसे पता चलेगा? मे बी बच्चा रोना बंद कर दे, ठीक है. सो इट इज़ यूज इन केस ऑफ ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम. अब हम ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम की बात करते हैं. देयर आर अदर मेडिसिन लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम, थूजा. दीज रेमेडीज आर ऑल्सो गिवन इन कीनोट. तो आप कीनोट में इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है. देन इट कैन बी यूज इन आयराइटिस, सिफिलिटिक और रूमेटिक, मतलब आई का कोई भी कंप्लेन, आइदर इट इज रूमेटिक और सिफिलिटिक इन ऑरिजिन, हैज़ बीन क्योर्ड विद सिफिलाइनम. नाउ टॉसिस. टॉसिस क्या है? ड्रोपिंग ऑफ आईलिड, ठीक है, ड्रोपिंग ऑफ आईलिड होता है. एंड उसकी वजह से कैसा है? स्लीपी लुक फ्रॉम ड्रोपिंग लिड्स, एक स्लीपी लुक आ रहा है फ्रॉम द आईलिड. तो इट इज़ यूज्ड इन दैट केस. टॉसिस के केसेस में भी जिसमें आंख क्या है पूरा भारी होकर नीचे की तरफ लटक गया, जिसको हम पफिनेस भी बोलते हैं, तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के केसेस में ये यूज़ किया जाता है. व्हेन द मोडेलिटीज आर लाइक पेन एग्रेवेट 2 to 5 AM हो गया, ठीक है, पस्ट्यूलर डिस्चार्ज उसमें से आ रहा है, एंड लिड्स जो हो रहे हैं वो एडहर हो रहा है ड्यूरिंग द स्लीप. एडहर मतलब चिपकना, ओके. नाउ नेक्स्ट इज डिप्लोपिया. यू कैन यूज़ इन डबल विजन. डिप्लोपिया क्या है? डबल विजन. पेशेंट को साफ साफ नहीं दिख रहा है, 2 चीज़ें दिख रही हैं, डबल विजन. वन इमेज सीन बिलो द अदर, एक इमेज ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है. तो ऐसी वाली कंडीशन में भी हम सिफिलाइनम सोच सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट आई सिम्टम. ना कम टू टीथ. उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है?
सी जब भी हम सिफ्लाइनम की बात करते हैं ना, तो मोस्टली यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज डिले इन माइलस्टोन ऑफ चाइल्ड. ठीक है, माइलस्टोन क्या क्या है उसका? वॉकिंग, टॉकिंग, चलना, बोलना, फिरना, ये सब जो बच्चे के सारी चीज़ें, रिफ्लेक्सेस, ये सब जो टाइम से होना चाहिए वो सब इस केसेस में, सिफिलिस के केस में डिलेड होता है. सिफ्लिनम तब आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. सो वैसा ही प्रेजेंटेशन भी देगा. टीथ डिके एट एज ऑफ द गम एंड ब्रेक ऑफ. जल्दी जल्दी बच्चे के क्या है, दांत खराब होते हैं. आर कप्ड, कप्ड जैसे ऐसे, ठीक है. हैव सेरेटेड एजेस, ड्वार्फ्ड इन साइज एंड कन्वर्ज एट देयर टिप. कन्वर्ज करते हैं टिप पे, मतलब इस तरह का प्रेजेंटेशन देगा. कन्वर्ज मतलब ड्रैक्युला जैसा. इस तरह के बच्चे के दांत हैं. पहली चीज़, खराब बहुत जल्दी होते हैं, और कहाँ से? एज से. नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रूट और क्राउन. ठीक है, एज से और किस में भी जाता है? अनदर रेमेडीज इज स्टेफिसेग्रिया, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्राउन, देन इट इज मर्क्यूरियस. Okay, to converge at their tips is stephysagria. Now there is excessive flow of saliva. It run out of mouth when sleeping. जब बच्चा सोता है तो मुंह से खूब सारा राल आता है. ठीक है, ड्रूलिंग जिसको हम बोलते हैं. So this is about mouth symptom. Now come to the typical eruption of syphilinum. स्किन का अगर प्रेजेंटेशन आती है या स्किन अफेक्शन कोई आता है तो उसमें कैसा प्रेजेंटेशन देगा? सिफिलिनम में कॉपर कलर स्पॉट होगा. कॉपर जैसा होता है ना, जैसा कॉपर कलर होता है उसके जैसे स्पॉट्स आते हैं. बट इट कवर मेनी अदर फॉर्म्स इंक्लूडिंग पैम्फिगस. ऐसा नहीं है, डिजीज स्पेसिफिक पूरा नहीं है. ठीक है, पैम्फिगस को भी ये ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए यूज़ होता है. कॉपर कलर से अगर हम बात करें तो किस तरह के स्पॉट हुए? रेडिश ब्राउन, क्योंकि कॉपर, तांबे का कलर तो यही होता है ना. ठीक है, तो टिपिकल इरप्शंस आर लाइक दैट ऑफ कॉपर कलर्ड. The glandular system is affected throughout and nutrition impaired leading to extreme emaciation. एक बड़ी काम की चीज़ है कि emaciated patient होता है. Emaciation of whole body. आप कीनोट में चेक करना, emaciation of whole body is marked. ठीक है. Now come to the next. Very important. Craving for alcohol in any form. ठीक है. क्रेविंग फॉर एल्कोहल. एल्कोहल बहुत बहुत पसंद है. पेशेंट इज डिपेंडेंट ऑन दिस. बट व्हेन आई विल टेल यू अबाउट द मेंटल सिम्टम्स, आई विल टेल यू वो क्यों इतना डिपेंडेंट होता है. पहली चीज़ हेरिडिटरी है. अगर घर में ऐसा हिस्ट्री है, पेरेंट्स भी एल्कोहलिक हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी एल्कोहलिक है, ऐसा कुछ है, तो वो एक टेंडेंसी भी हो गया. ठीक है, जेनेटिक वाली चीज़ भी हो गई. दूसरा, अदरवाइज वाई द पर्सन नीड एल्कोहल, आई विल टेल यू इन डिटेल व्हेन आई विल टेल यू अबाउट द मेंटल सिम्टम्स कि एल्कोहल पे क्यों डिपेंड करता है. ठीक है, टिल देन सस्पेंस रखो. Hereditary tendency to alcoholism. Other remedies same is Asarum europeum, Solanum, Tuberculinum, sulfur and sulfuric acid. Okay, then पेन की बात हमने करी है तो एक चीज़ तो हमें पता है क्या? पेन एग्रीवेटेड नाइट. एंड अनदर पॉइंट इज पेन इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली. मतलब उसका जो पेन है स्लोली राइज करेगा. ठीक है, एक पॉइंट पे पहुंचा एंड देन स्लोली नीचे आ जाएगा. तो इंक्रीज और डिक्रीज ग्रेजुअली. ये और कौन कौन सी रेमेडी कवर अप करती हैं सेम सिम्टम है? स्टैंडम मेटेलिकम एंड प्लेटिना. इसमें भी सिमिलर है. देन पेन आर विच टाइप? शिफ्टिंग. शिफ्टिंग मीन्स अभी राइट आर्म में हो रहा था, अभी लेफ्ट आर्म में प्रेजेंटेशन दे रहा है. ठीक है, एक पैर में हो रहा है, दूसरे में चला गया, अभी बैक में था, अभी एब्डोमेन में आ गया. तो दिस काइंड ऑफ पेन आर शिफ्टिंग एंड रिक्वायर फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ पोजिशन. और इस पेन को रिलीव करने के लिए पर्सन हैज़ टू चेंज देयर पोजिशन. सो दिस वॉज अबाउट पेन. पेन, नाइट एग्रीवेशन एंड increase, slow increase, gradually increase and decrease. Next is syphilinum has a great sphere in rectal pain. Very important. Constipation के लिए दी जाती है. नब समझना, कॉन्स्टिपेशन भी इसका ईजी नहीं है. एक नॉर्मल 2-3 दिन में पास होता है. ठीक है, उसका बावल एक्टिविटी ठीक नहीं है इसलिए 2-3 दिन में पास करता है. बट इधर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन. ऑब्स्टिनेट मतलब ऑब्स्टिनेट क्या होता है? हेडस्ट्रॉन्ग, जिद्दी. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन फॉर ईयर्स. पेशेंट को ये प्रॉब्लम कई सालों से है. रेक्टम सीम टाइड अप विद स्ट्रिक्चर. क्या लग रहा है? रेक्टम जो है वो टाइड अप हो गया है. स्ट्रिक्चर्स क्या होता है हमारा? रेक्टम सीम्स टाइड अप विद स्ट्रिक्चर्स. स्ट्रिक्चर का मीनिंग है हमारा, स्ट्रिक्चर जो होता है मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देगा, वही बोला. तो रेक्टम कैसा हो गया?
रेस्ट्रिक्टेड हो गया है तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है. बट व्हेन एनेमा क्या है? टू पास स्टूल जो दिया जाता है, ठीक है. वाज यूज द इगोनी ऑफ पैसेज वाज लाइक लेबर. तो जो पेन है उस टाइम पे, जो स्टूल वो पास करेगा आफ्टर गिविंग द एनेमा इज लाइक लेबर पेन. इतना सीवियर पेशेंट को पेन होगा उसमें. क्योंकि अब हम अगर सिफिलिस के बारे में बात कर लेना तो हेड स्ट्रॉन्ग तो हो ही गया वो. मेंटली अगर आप इसको मैच कर रहे हो, हेड स्ट्रॉन्ग है तभी तो डिस्ट्रक्टिव है. अगर हेड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, तो जो भी अगर सामने वाला, मेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, अगर कुछ हेड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो सामने वाले के पॉइंट, डिसीजन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राडिक्शन सब कुछ वो सुनेगा, ठीक है. बट सिफिलिस स्टेज में आके पेशेंट इज हेड स्ट्रॉन्ग, नहीं सुनेगा, उसे जो करना है वही करेगा. सेम फिजिकली भी बॉडी भी वैसा ही प्रोड्यूस कर रही है सिम्टम्स. So the important thing is when enema was used, the agonio passage was like of labor. So this is about rectum. Fissure भी मिलेगा in rectum, with prolapse भी हो सकता है. Unobstinate cases with syphilitic history हो सकता है fissure of rectum के साथ आया हो, ठीक है. नाइट एग्रीवेशन बताया उसने आपको, कॉन्स्टिपेशन भी है और prolapse भी हो सकता है, and a history of syphilis. Okay. Now what HCLN says about this? Syphilitic or patient who have had chancre treated by local means and as a result have suffered from throat and skin, it's not skip, it's skin trouble for years, are nearly always benefited by this remedy at commencement of treatment unless some other remedy is clearly indicated. What he is saying कि अगर syphilis, primary syphilis की बात हम कर रहे हैं, who have chancre treated by लोकल मीन, वही लोकल मीन जैसे मर्करी वगैरह उसको दे दिया या कुछ और ऑइंटमेंट वगैरह दिया है, प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, उन लोकल मीन से उसको ट्रीट किया गया, देन द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम, हो सकता है अभी एप्लीकेशन लगाया ठीक हो गया उसका, बट उसको आगे प्रॉब्लम क्या होगा? थ्रॉट और स्किन कंप्लेन आ सकता है. तो दीज थ्रॉट एंड स्किन कंप्लेन कैन बी क्योर बाय सिफिलिनम until unless there is another indication. 14th point है हमारा, in addition to that Dr. Kent said that this should not be given in primary manifestation of syphilis. सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि it has cured cases of secondary syphilis but not of primary. We should not prescribe it for primary syphilis because one thing we know that Mercurius is king of antisyphilitic and even जो old school है उसका mistake क्या है कि they are giving that in crude form and which is harmful for the body. But अगर हम यही potentize करके दे रहे हैं then it is going to cure the primary stage of syphilis. So this is one of the precaution you have to take. इसलिए I have marked it. Now it is more affected in cases where secondary symptom or suppression of syphilis is present. जहाँ पे सप्रेशन हमको मिल रहा है, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है, या पर्सन ने कुछ और ऑइंटमेंट वगैरह लगा के उसको बंद कर दिया है, ठीक है, वहाँ पर हमारा सिफिलिनम काम करेगा. तो इट वर्क बेटर विद सेकेंडरी सिम्टम एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सिम्टम. नाउ पेन के कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या क्या बात करा? नाइट एग्रीवेशन, ठीक है. दूसरा क्या करा? इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली. द थर्ड पॉइंट, इसका पेन कैसा है? लीनियर. लीनियर मीन्स लाइन जैसा, ठीक है, इस तरह का लीनियर है. हैव बीन ऑब्जर्व इन सिफिलिनम केसेस लाइक हेडेक विद लीनियर पेन. जो हेडेक का कैरेक्टरिस्टिक होगा, पेन का सेंसेशन पेशेंट बताएगा ऐसा लगता है कुछ लाइन जैसा. एंड यू कैन ऑल्सो एज्यूम इट इन न्यूरल्जिक पेन ऑल्सो. वो भी ऐसे ही होता है, सडन होता है, डार्टिंग होता है. टेम्पोरल रीजन कैन बी अफेक्टेड और आई से लेके बैकवर्ड जा रहा है विच कॉजेज स्लीपलेसनेस. इतना ज़्यादा पेन है उसको कि द पेशेंट कैन नॉट स्लीप. एंड डिलीरियम एट नाइट. नाउ वी हैव टू रिमेंबर द मोडालिटीज़. कमेंसिंग एट 4 PM, शाम को 4 बजे से शुरू होगा, वर्स होगा 10 से 11, रात के 10-11 बजे वर्स हो जाएगा. एंड सीजिंग इन डे लाइट, ख़त्म हो जाता है डे लाइट में. विद फॉलिंग ऑफ हेयर भी मिल सकता है कॉमनली. सो यू हैव टू रिमेंबर हेडेक कैसा है. मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक बता दिए पेन के. नाइट एग्रीवेशन, इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली एंड इट इज़ लीनियर इन कैरेक्टर. सो वॉट एवर काइंड ऑफ पेन, कंप्लेन कोई भी हो सकती है. अगर आपको ये 3 कैरेक्टर मिल रहे हैं आपको पेन के, आप आराम से सिफिलिनम दे सकते हो in that case. Okay, now let's come to another point, that is rheumatism. Rheumatism in the shoulder joint or at insertion of deltoid. ठीक है, shoulder joint का rheumatism क्या है? Affecting joints. Disease which is affecting the joints. तो shoulder joint है या insertion of deltoid है. It aggravates from raising arm laterally. Person cannot raise their arm laterally. This is a presentation. This is a main we can say important point in syphilis.
सो रोमैटिज्म ऑफ शोल्डर जॉइंट और एट इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड, जहाँ पे इंसर्शन है डेल्टॉइड का, एंड एग्रीवेशन क्या है, पेशेंट मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लिटरली उसको मूव भी नहीं कर पा रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम. देन रस्टॉक्स में भी ऐसा ही है, बट शोल्डर जॉइंट ना बहुत स्पेसिफिकली नहीं बोला इसने राइट या लेफ्ट में. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेमेडीज फॉर राइट शोल्डर पेन. अगर राइट शोल्डर पेन है देन यू कैन गो विथ sanguineria. दिस इज sanguineria. And if it is left shoulder, rheumatism of left shoulder या left shoulder pain, then we can go with ferrum metallicum. So ये जो comparison है ना हमारा, ये हमारे Materia Medica को और ज़्यादा strong करता है. And it also help you to differentiate one remedy from another. कि अगर आप केस सिलेक्शन के लिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए सोच रहे हो तो यू हैव टू डिसाइड कि ये सिम्टम लेना है या नहीं लेना है. यही चीज़ें होती है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लिकोरिया. Licoria is profuse, soaking through the napkin and running down the heel. Alumina is given in the bracket. Why? See, because alumina is also having the same manifestation. इसलिए alumina से compare करेंगे हम, तो we can compare it. Firstly, alumina में जो discharge होगा acrid in nature and aggravation is daytime, while in cephalianum it is aggravation at night. So this is about Licoria. Then the next point is aphonia. Now here comes aphonia. Aphonia is loss of voice, ठीक है, and it can be of many causes, because of many causes. Then there is chronic asthma in summer. One interesting fact I want to share with you is like सोरा है अगर तो उसमें asthma is worse in winter, जो कि normally है. एक normal modality asthma का aggravation is commonly seen in winters. Then psychosis seen in humid weather, aggravation in humid weather. And when we are talking about syphilis, then the respiratory complaint worse in summer. So always remember इसका जो respiratory complaints हैं they get worse in summer. Then it is wheezing and rattling, cough is there, dry in character, dry or hard, worse at night. Again the same modality, night aggravation. Windpipe sensitive to touch. Windpipe इतना sensitive है, sensitive to touch like lecasis. But lecasis में the difference is the patient cannot bear anything around the neck, collar के अराउंड कुछ नहीं देख सकता वो, ठीक है, कुछ नहीं बियर करेगा. सेम गोज विथ सिफ्लाइनम बट इन अनदर वर्ड, ठीक है. देन चलते हैं लेंसिनेटिंग पेन फ्रॉम बेस ऑफ एपेक्स, बेस ऑफ द हार्ट टू द एपेक्स एट नाइट. जो हार्ट पेन है इसका कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, इस बेस टू एपेक्स. बेस अपर साइड में होता है, एपेक्स नीचे होता है हमारा, ठीक है. सो द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड. एंड इफ वी कंपेयर विद अदर रेमेडीज देन स्पाइजीलिया में क्या लिखा है, बेस टू क्लेविकल. ये क्लेविकल हो गया या शोल्डर हो गया हमारा, ठीक है, एंड दिस इज बेस ऑफ हार्ट, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा. दैन इट इज़ स्पाइजीलिया. देन वी हैव टू कंपेयर इट, अगर बेस पर ही कोई अबनॉर्मल सेंसेशन है, ठीक है, या पेन है, देन वी कैन थिंक ऑफ लोबीलिया. एंड अगर एपेक्स रीजन इज अफेक्टेड ओनली देन वी कैन थिंक ऑफ लिलियम टिक. सो ये डिफ्रेंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and it definitely help you to prescribe the medicine, differentiate the remedies. Last point is our general modalities, in which first we are going to talk about the aggravation. Aggravation में first symptom जो हमने बोला है night aggravation, very marked, sundown to sunrise, that is twilight to daytime. Daytime में better है. Seashore, sea. The syphilitic patient get aggravated at beach side or seaside, बट गेट बेटर इन माउंटेन एरिया. एंड अगर फिजिकली हम बात करें, मेंटली बात करें, तो माउंटेन लवर, दिस पर्सन विल प्रीफर हिली एरियाज ओवर बीच एरियाज, ठीक है. एंड अगर आप कार्सिनोसिन की बात करते हैं देन 50% उसको बीच भी पसंद है और माउंटेन भी पसंद है, तो द पर्सन इज in between. Then summer, अभी बताया अस्थमा का एग्रीवेशन इज समर. देन एमिलरेशन बेटर कब हो रहा है, इन लैंड, माउंटेन और ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम पे, ठीक है. मूविंग अबाउट स्लोली, ऑलरेडी टोल्ड यू एक सिम्टम जो हमने पढ़ा था कि पेन बेटर होता है उसको लीड टू चेंज ऑफ पोजिशन, उससे उसको थोड़ा बेटर होता है. एंड मूविंग अबाउट स्लोली में देर आर अदर मेडिसिन लाइक फेरामेट, डल्कमारा. सो इट इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग, अगर मटीरिया मेडिका हम कंपैरिजन के साथ पढ़ें तो बात ही अलग है. एंड दिस इज़ द राइट वे टू स्टडी मटीरिया मेडिका.
So guys, with this I'm going to finish off with our part 1 symphylinum, and in the second part we are going to study about the personality of symphylinum. And I have tried to cover off every single thing. उसका मार्क फीचर से लेके पर्टिकुलर्स तक भी मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है. I hope you like the video. I hope now you have a clear understanding about the nosode, symphylinum, and if you have any doubt, please comment down in comment box. And if you like my video, please share and subscribe, and wait for the next one, that is part 2. It's going to be very interesting because I'm going to teach you about the constitution and personality type. So guys, thank you so much.